Good evening, you're watching To The Point. I'm Preeti Chaudhary. The countdown to Delhi's grand finale has begun with less than a week left for the capital to go to vote. Arvind Kejriwal aims to woo women and the youth with his 15 guarantees. But the vandalism of an Ambedkar statue in Punjab's Amritsar has put a bit of a dampener on the Aam Aadmi Party campaign. तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, आदरणीय राहुल गांधी जी कार्यकर्ताओं का अभिवादन। With just over a week to go for Delhi to cast the ballot, Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal released the party's 15 guarantees in the capital. आज हम 15 गारंटी जारी कर रहे हैं। 15 केजरीवाल की गारंटियां जारी कर रहे हैं, जो कि अगले 5 साल के अंदर पूरी की जाएंगी। The Aam Aadmi Party's key guarantees focus on welfare schemes to the youth and women, as well as a cleaner, better Delhi promise. भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में समय समय पे उनके नेताओं ने, उनके पार्टी के प्रवक्ताओं ने जगह जगह ये साफ कर दिया है कि उनकी सरकार बनेगी तो वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा बंद कर देंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि दिल्ली में मुफ्त बिजली बंद कर दी जाएगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बंद कर दिए जाएंगे। Promising employment opportunities, rupees 2100 to every woman, health treatment to all citizens above 60 years of age under the Sanjeevani Yojana. Kejriwal also vowed to waive off false water bills and ensure 24 hours water supply to residents. The former chief minister also promised roads as per European standards and vowed to clean up the Yamuna. For students, AAP promises free bus travel and a 50% metro concession. Kejriwal also officially announced that every priest and granthi will get 18,000 rupees a month. तो सबसे पहली है रोजगार की गारंटी। दूसरी गारंटी है महिला सम्मान योजना। तीसरी गारंटी है संजीवनी योजना कि हमारे बुजुर्ग 60 साल से ऊपर होने पे उनको ये चिंता सताती है कि बीमार हो गए तो क्या होगा, चाहे उसे ये सरकारी अस्पताल में कराना पड़े चाहे प्राइवेट इलाज अस्पताल में कराना पड़े, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। The opposition mocked Kejriwal's guarantees, claiming his guarantees are a lie. रोज नई घोषणा, रोज नए झूठ, रोज नए वायदे। इनके किसी भी प्रचार प्रसार में इन्होंने काम क्या किया है? 11 साल में क्या काम गरीबों के लिए किया, किसानों के लिए किया, बुजुर्गों के लिए किया, महिलाओं के लिए किया? वो 11 साल में कोई काम नहीं बता रहे। मैं करूंगा 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 करते जा रहे हैं। दिल्ली की जनता कब तक सहन करेगी, कब तक वो विश्वास करेगी? नरेंद्र मोदी जी के On Sunday, Home Minister Amit Shah renewed the BJP's Sheesh Mahal attack against Kejriwal while campaigning in the capital. उन्होंने कहा था हम सरकारी बंगला भी नहीं लेंगे, और भाइयों बहनों इतना बड़ा 51 करोड़ का शीश महल बनाया, 4 बंगले तोड़कर एक बंगला बनाने का काम एक केजरीवाल जी ने किया। Meanwhile, a fresh Ambedkar flashpoint erupted. On January 26, an Ambedkar statue was vandalized in Amritsar. The accused climbed up the Dalit icon statue and defaced it with a hammer. While the Punjab government has condemned it and arrested the accused, protests have erupted in Amritsar and Delhi. The BJP is accusing Kejriwal of insulting the Dalit icon. इन्होंने कहा था उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं बनाया। राज्यसभा में एक भी दलित सांसद नहीं बनाया। 2 इनके दलित मंत्रियों ने इस्तीफा दिया कि ये लोग आम आदमी पार्टी की सोच दलित विरोधी है। और यही नहीं, इन्होंने 500 बच्चों को 5 सालों में विदेश में पढ़ने के लिए भेजना था, दलित समाज के 5 बच्चों को भी नहीं भेजा है। And its own India ally, the Congress, is questioning if Arvind Kejriwal is anti-national. क्या देश के खिलाफ चलते हैं चाल केजरीवाल? क्या सत्ता की भूख मिटाने के लिए देश को धोखा दे रहे हैं केजरीवाल?
सचमुच में क्या तुम देशद्रोही हो? सचमुच में क्या तुम खलनायक हो? क्या नायक का सिर्फ मुखौटा हो? Clearly, the three-way fight for the national capital is escalating. Bureau Report, India Today. All right, now let's take you in New Delhi to the constituency of Manish Sisodia, Jangpura. Well, it is a tight fight for Manish Sisodia. He's come in from Patparganj, where he moved from his constituency of Patparganj to Jangpura, and he's not finding it very easy. I spoke to Manish Sisodia right hours after Arvind Kejriwal declared him the next deputy CM of Delhi if the Aam Aadmi Party comes to power. Many suggest even this declaration has happened because Manish Sisodia might not be very comfortable in his campaign. कैसा चल रहा है कैंपेन मनीष जी? कैंपेन अच्छा चल रहा है, लोगों में एक भरोसा है केजरीवाल जी को लेके एक भरोसा है कि केजरीवाल जी जो कह रहे हैं वो उन्होंने करके भी दिखाया और करके भी दिखाएंगे। तो जंगपुरा के लोग हैं, पहली बार यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार, झाड़ू पे वोट देना। नमस्ते। पहली बार जो आप जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ के क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है एड्रेस करने चाहिए, जो आपके विधायक जो पहले थे नहीं कर पाए? नहीं, यहाँ पे 30-40 साल पुरानी जो सीवर लाइन्स हैं जी, वो एक पेन पॉइंट है। जो लोगों के घरों में सीवर का जो पानी है वो ओवरफ्लो हो रहा है सीवर्स में घरों के सामने, वो सीवर बदलवाने हैं। और कुछ सड़कें हैं जो टूटी हुई रह गई हैं, जैसे जिस सड़क पे हम चल रहे हैं ये यहाँ पे सीवर डलवाया, ये झुग्गियाँ हैं, बीजेपी इनको तोड़ने आ गई थी और इनको रुकवाया तोड़ने से, यहाँ पे सीवर डलवाया। ये लोग जिस बस्ती में इस वक्त हैं, ये लोग तमिलनाडु से आके यहाँ रह रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, इस भरोसे पे आए थे कि उनके देश की राजधानी है, यहाँ आके जिया जा सकता है, कुछ कमाया जा सकता है, परिवार पाला जा सकता है। लेकिन इनको फिर अब उजाड़ने की कोशिश होती है, तो फिर केजरीवाल जी की सरकार खड़ी होती है कि जब तक इनको पक्के मकान नहीं मिल जाते तब तक झुग्गियाँ रहनी चाहिए, तब तक झुग्गियाँ रहनी चाहिए। तो ये आपका एक सीवर वाटर यहाँ का आपका मेन प्लान है? सीवर ओवरऑल जंगपुरा पूरी विधानसभा का सीवर है, वाटर इशू है, सड़कें खराब हो रही हैं पिछले कुछ दिनों में। इसके साथ साथ एक दो चीजें और हैं जो जंगपुरा विधानसभा के बारे में अगर मैं बात करूं तो जंगपुरा विधानसभा में 3-4 नमस्कार, झाड़ू पे वोट देना बहन, झाड़ू पे वोट देना है 5 तारीख को। तो जैसे दरियागंज जैसी कॉलोनी है यहाँ, ऐतिहासिक कॉलोनी है, मुझे लगता है उसको भी फेसलिफ्ट करके एक चांदनी चौक जैसा लुक दिए जाने की जरूरत है। हजरत निजामुद्दीन साहब की दरगाह है यहाँ पे, वहाँ भी दुनिया भर से लोग आते हैं। उसको भी अभी जिस हालत में है उसको भी मैं एक प्लान तैयार करा रहा हूँ, मैंने कुछ कंसल्टेंट से बात की है और बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को आइडिया कि चांदनी चौक की तरह से उसको भी डेवलप किया जा सकता है। और एक लाजपत नगर का सेंट्रल मार्केट है जिसको हम लोग पहले भी डेवलप कर रहे थे, दिल्ली के 5 मार्केट्स में मैंने चुना था उसको। अब मैं यहाँ से विधायक रहूँगा तो वो मेरी विधानसभा का एक ऐसा मैटर ऑफ प्राइड ऑफ बीइंग एन एमएलए रहेगा कि उसको डेवलप करना फिर मेरी पर्सनल प्रायोरिटी में रहेगा। तो जंगपुरा एक कॉन्सेप्ट अच्छी है। जी नमस्ते, नमस्ते, झाड़ू पे वोट दीजिएगा बहन। मनीष जी, जंगपुरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ बहुत अलग अलग कॉलोनीज हैं। एक जहाँ पर हम हैं तो मान लीजिए एक स्लम क्लस्टर है जिसके साथ हाई एंड मकान लगते हैं, फिर लाजपत नगर ट्रेडर्स, मिडिल क्लास। नमस्ते, सब झाड़ू पे बिल्कुल। रिश्तेदार सबको बोलो। तो उसको कैसे एड्रेस करेंगे, क्योंकि जो बीजेपी कह रही है कि अंडर करंट है जो पिछले। नमस्कार, वोटर स्लिप का काम हो रहा है। नमस्कार, वोटर स्लिप का काम चल रहा है, बहुत बढ़िया। कैसे हो? तो सबको झाड़ू पे वोट देना है, वही झुग्गी बचाएंगे। थैंक यू। मैं यही रहता हूँ। अच्छा, हाँ ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार। तो बीजेपी कह रही है अंडर करंट है कि जो पिछले विधायक थे सिर्फ निजामुद्दीन, सिर्फ माइनॉरिटी एरियाज में काम हुआ है, जो बाकी एरियाज है वहाँ काम नहीं। देखो, बीजेपी का तो काम है गाली गुफ्तार करना, उनको काम वाम तो कुछ आता नहीं है, उनके पास कोई विजन भी नहीं है। भाई बीजेपी की सरकार ही नहीं बन रही, पूरी दिल्ली में भी ये माहौल बना हुआ है कि सरकार तो केजरीवाल जी की आ रही है। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि जो 2-4 सीटें कम होंगी पर सरकार तो केजरीवाल जी की आएगी। तो वैसे में जंगपुरा की जनता के मन में भी यही है कि जब पूरी दिल्ली केजरीवाल जी की सरकार बना रही है तो हम भी मनीष सिसोदिया को विधायक बना के भेजेंगे ताकि यहाँ काम तेजी से हो। मैं सरकार में रहूँगा तो ना फंड की कमी होगी, ना पावर की कमी होगी,
फिर काम तेजी से होंगे, जो अभी तक नहीं हुए उतने काम भी तेजी से होंगे। बीजेपी ये भी कह रही है कि सीट फंस गई है, इसीलिए डेप्यूटी सीएम अनाउंस करना पड़ रहा है अरविंद केजरीवाल है मनीष सिसोदिया को। ये फंसी हुई सीट को निकालने के लिए 2015 में डिप्टी सीएम बना दिया था। थैंक यू, फुल सपोर्ट, थैंक यू। देखिए लोगों की फुल सपोर्ट है। नमस्ते, कहाँ पढ़ते हो बेटा? फोटो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सवाल है कि डेप्यूटी सीएम अनाउंस करना पड़ा कि अगर सरकार आती है तो मनीष सिसोदिया डेप्यूटी सीएम बनेंगे, इनको वोट करिए आपकी। वो तो 2015 से कर रखा है। तो मतलब वो तो आना ही था, वो तो इट वाज अनसेड थिंग आपके। नहीं, जब मैंने रिजाइन किया था जी, और जब केजरीवाल जी ने रिजाइन किया था, इनफैक्ट जब हम जेल से बाहर आए थे, उसके बाद हमने दोनों ने कहा था कि सीएम और डिप्टी सीएम की कुर्सी पर तब बैठेंगे जब जनता दोबारा बिठाएगी। तो वो तो वहीं से तय हो गया था। नमस्ते बहन, झाड़ू पे रखना। आपको ही देंगे, हम चाहते यही पे रहे। मैं तो तोड़ो, हमें मना नहीं है, हमें कहीं पास में दो। नहीं टूटेगी भी नहीं, चिंता मत करो, नहीं टूटेगी। नहीं, बच्चे की पढ़ाई भी है और घर भी है। मिलेगी। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते बहन, झाड़ू पे वोट रखना। थैंक यू, ध्यान रखना। सुबह से सारे तमिलनाडु वालों से बैठ के बात करके इस बार सीट आराम से निकलेगी आप कह रहे हैं, और आप डेप्यूटी सीएम हाँ, कंफर्टेबली। मुझे लगता है जो पूरी दिल्ली में माहौल है वही जंगपुरा पे भी माहौल है। जंगपुरा में मैं जिन बस्तियों में जा रहा हूँ, जैसे हर बस्ती के पास एक कारण है, कोई ना कोई। मेरा पर्सनल अटैचमेंट भी है लोगों से, और पार्टी और केजरीवाल जी का तो जो ऑरा है वो है ही है। मैं जिस बस्ती में आया हूँ, यहाँ पहले तोड़ने आ गए थे लोग इसको काफ़ी पहले, तो मैं यहाँ आया था, उनको भगाया था यहाँ से तोड़ने से। मैं सिद्धार्थ नगर, आश्रम, इन सब कॉलोनियों में जाता हूँ, किलोकरी गाँव में जाता हूँ। वहाँ मुझे रास्ते में बच्चे मिलते हैं, पेरेंट्स मिलते हैं कि जी हमारे तो बच्चे पढ़ रहे हैं, हम क्यों नहीं देंगे आपको वोट। 0 बिजली के बिल आ रहे हैं, फिर केजरीवाल जी ने कह दिया 2100 रुपये मिलेंगे हर महीने। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ लोगों को लगता है इन्हीं की वजह से हमारी एक ज़िंदगी में जीने में आसानी हो रही है। 25,000 रुपये कम से कम हर महीने बचत हो रही है लोगों की। तो कहाँ से लाएंगे लोग 25,000 अगर बीजेपी को जिताएंगे तो? आज जो बोला जी, तो पिछली बार जैसा नहीं होगा कि बिल्कुल राइट डाउन टू द वायर आ जाएगा काउंटिंग में। इस बार अच्छे से निकली जाएगी। अच्छे से ही है, राइट टाइम डाउन टू द वायर भी अच्छे से ही होता है। जीत तो जीत होती है। जीत तो जीत। आखिरी 2 सवाल मनीष जी, एक तो मुफ्त की रेवड़ी खाएंगे? नहीं, ये मुफ्त की नहीं है, तो खरीदी हुई है। ये वाली आपको कैसे पता? आपने तो मुफ्त की है। नहीं, ये वाली रेवड़ी मुफ्त की नहीं होती। हाँ। अच्छी शिक्षा, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा जब फ्री मिले, वो मुफ्त की रेवड़ी है, वो हर एक को मिलनी चाहिए। दूसरा सवाल, देखिए रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी तो सभी दे रहे हैं। अब ऐसा क्या डिफरेंस है आम आदमी पार्टी में, कांग्रेस में और बीजेपी में? मैनिफेस्टो तो एक लग रहा है। आम आदमी पार्टी ओरिजिनल है, ये लोग कॉपी पेस्ट हैं। तो कॉपी पेस्ट को जनता क्यों पसंद करेगी जब ओरिजिनल अरविंद केजरीवाल सामने खड़े हुए हैं? उनको पता है कि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बीजेपी वाले जो कहते हैं बाद में कह जाते हैं जुमला था, तो इनके लिए तो 2500 भी जुमला है। बोले केजरीवाल कह रहा था, हमने भी ऐसे कह दिया। मनीष जी, गुड लक, मे द बेस्ट मैन विन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और रेवड़ी के लिए धन्यवाद। ये रेवड़ी है जनता में मुफ्त की रेवड़ी, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य के रूप में जाती रहेंगी। देखते हैं किसकी रेवड़ी खाता है इस बार दिल्ली का निवासी। थैंक यू सो मच। Now, Manish Sisodia is facing off with the face of the Bharatiya Janata Party, Tarvinder Marwa, who was earlier on with the Congress Party, has been MLA from the same seat on which is now standing Manish Sisodia for 15 years. He's considered a local, while some might say that Manish Sisodia is an outsider. मारवा जी, कैसा चल रहा है चुनाव? कैंपेन कैसा चल रहा है? देख नहीं रहे आप लोग, अभी तक 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है। इससे बढ़िया चुनाव क्या है? सिर्फ खर्च सिर्फ हैंड बिल पे और पॉपुलर में, और खर्च नहीं। अपने आप लोगों ने चेयर का इंतजाम कर रहे हैं, अपने आप खाना पीने का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन खर्चे मेरे में ही पड़ेंगे। लेकिन कर ये नहीं। मारवा जी, पहले भी यहाँ से रह चुके हैं आप विधायक। हाँ जी। तो इस बार किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है? देखो, मुद्दे तो इतने हैं क्योंकि 11 साल यहाँ कोई काम नहीं हुआ। अब इन्होंने ऐसा कैंडिडेट दे दिया जिसका यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, बाहर का है। अगर वो वहीं सेवा करता तो सीट क्यों छोड़ के आता? मैं तो 15 साल विधायक भी रहा हूँ, 11 साल यहीं पर अपने बिता दिए, लोगों की सेवा करता रहूँ, उसका ही फल आज मिल रहा है। आप देख रहे हो, यहाँ पर किसी से बात कर लो जाके कि मरवा सबको वोट डालोगे कि नहीं।
एकदम कहेंगे डालेंगे। मारवा साहब, अब ये भी एक अनाउंसमेंट हो गई है कि मनीष सिसोदिया अगर यहाँ से चुन के आते हैं तो डेप्यूटी सीएम बनाए जाएंगे, डेप्यूटी सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी होगी और काम सारा डेप्यूटी सीएम का होगा। नहीं, पहले वो कौन से वो कहते हैं सपने देख रहे हैं, मुरारी लाल केजरीवाल तो मुगरी लाल के सपने देखना केजरीवाल छोड़ दे, क्योंकि उसकी सत्ता जा रही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 50 और 55 के सीटों में आ रही है। जो मोदी जी ने अपनी गारंटी दे दी है, 2500 रुपया आपके भी खाते में आएगा। मेरे में तो नहीं आएगा जी, मेरे तो एक वो गारंटी में थोड़ा सा वो भी होता है ना, एक फाइन प्रिंट। नहीं, उन्होंने कह दिया सबको देंगे हम। अच्छा, वो लो ना लो अपनी मर्जी है ना। अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं, वो भी 2100 दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ओरिजिनली गारंटी। नहीं, वो दे ही नहीं रहा। पंजाब में कहाँ दिया है जी? पंजाब में क्या दिया है? 3 साल हो गए, 1000 कहा था, वहाँ तो उसको फ्री है चीफ मिनिस्टर को। मारवा साहब, जो जंगपुरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो थोड़ी यूनिक है। आपके यहाँ पर स्लम्स भी हैं, वहाँ पर निजामुद्दीन की बस्ती भी है, भोगल एरिया है, जो यूजुअली आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है। तो ऐसा कैसे होगा कि इस बार आपको लगता है कि बीजेपी जीत पाएगी चुनाव? आप जीत पाएंगे? लोग काम पर जाते हैं, चाहे कोई भी कॉलोनी हो, लोगों ने काम करने हैं। ये पहले जैसी आंधी नहीं है उसकी, उल्टा लोगों को झूठ बोल के बका दिया। अब लोग समझदार हो गए। आज आप बिजली पे लगाओ, सब्सिडी कितनी है? 22-25% है। किस चीज की है? वो कहता है मैं मुफ्त दे रहा हूँ। सब्सिडी क्यों ले रहा है? दे रहा है मुफ्त दे, सब्सिडी का क्या लेना? इनका बिल आ रहा है 10,000, 2500 ऊपर लग के आ रहा है, 12,500 दे रहे। क्यों दे रहे? पहले तो वो माफ कर। देखो, आप गुरबान पकड़ के ले रहे हो ना, जबरदस्ती ले रहे हो। तो आपको लग रहा है कि हर सेक्शन से वोट आएगा आपको इस बार? हमको हर सेक्शन के वोट आएगा, जब कहीं खर्चा ही नहीं हो रहा, वोट ही वोट है। मारवा जी, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी कि पहले आप थे कांग्रेस में, अब आप गए बीजेपी में, आपको लगता है वही गुडविल? नहीं, मैं क्यों कांग्रेस छोड़ी है? क्योंकि जब से मोदी जी ने करतारपुर कॉरिडोर किया, जी, जहाँ गुरु नानक देव महाराज जी ने अपना अंतिम समय निकाला था। अभी पाकिस्तान से हमारी कूटनीति रिश्ते खराब है, लेकिन मोदी जी की कूटनीति से तो आज हजारों श्रद्धालु वहाँ जाते हैं और शाम को मत्था टेक के आ जाते हैं। उस दिन मैंने सोच लिया कि अब मैं मोदी जी के साथ जा रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी छोड़ दूँ। तो इस बार वोट आपके नाम पर है या आपके सिंबल पर है? सिंबल पे है ना, कमल के नाम पे। मारवा जी का जो क्योंकि यहाँ से रहे हुए हैं, उनका नाम नहीं रहेगा? नहीं, नाम पार्टी का ही होता है ना जी। मारवा जी का नाम तो बाद में आएगा, पहले पार्टी का नाम आएगा। और मनीष सिसोदिया को हराएंगे? हराएंगे। वो वोटें गिनेगा डब्बे में कितनी आई है मेरी आने वाले टाइम। अभी आज जंगपुरा भी घूम रहा था, आप देख नहीं रहे उसके साथ लोग कौन है? आप आइडेंटिटी कार्ड उनका चेक करो। 400 लोग आए हैं पंजाब से जी। गली गली में पंजाब के लोग घूम रहे हैं, पूछ लो। और ये इनमें से देखो कोई मेरी रैली देखो जो पहले निकाली, अब 1 तारीख को निकाल रहा हूँ दोबारा रैली, उसमें देखना एक भी बाहर का आदमी हो तो। और 3 तारीख को अमित शाह जी आ रहे हैं, उसमें भी देखना, हमने बाहर से नहीं है, यही लोग आएंगे। आपको पता चल जाएगा सर, गुड लक। 8 को पता चल जाएगा। 8 को क्या? वो 8 को नहीं, मैं 1 तारीख को बता दूंगा, आप आ जाना रैली में। पहले की क्यों वेट कर रहे हैं? आज बता दिया आपको। All right, so that's the face-off that is brewing in Jangpura. Of course, there is a former mayor that the Congress has fielded, Farhad Suri. He's refused to speak to the media. But let's cut across right now to the report that I filed from Delhi 6. With that, it's a wrap and to the point. Thank you for watching. रीबैन नहीं काफी है। अरे कोई भी लगवा दो, अपने घर की मोहर है, जो चाहे वो लगवा दो। कोई भी लगवा दो, कुछ भी लग जाता है। ये दिल्ली 6 है। दादा बोलना नहीं चाहिए, ये सही चीज नहीं है। सही चीज ही मिलती है यहाँ पर, असली चीज कहीं नहीं मिलती मैडम। सही चीज मिलती है, असली नहीं मिलती। असली कहीं नहीं मिलती। ये दिल्ली 6 है, यहाँ जुगाड़ है हर चीज के। यहाँ पे हम शक्ल बना के खड़ा कर देंगे। क्या कर देंगे?
मेरा हम शक्ल बना के खड़ा कर देंगे यहाँ पर। हाँ। ये इतना जुगाड़ है, करवाई दो, एक तो चाहिए। इतना जुगाड़ है इस इलाके में, दिल्ली 6 के अंदर इतने हैं कि मुझे से 10 बन जाएंगे। बढ़िया, मैं आऊंगी। बस्ती है मस्तानों की दिल्ली, दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली 6। बस्ती है मस्तानों की दिल्ली, दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली 6। वेलकम टू ओल्ड दिल्ली, दिल्ली 6। कुछ भी हो सकता है, इसको कोई बॉन्ड नहीं, कोई डेफिनेट पक्का नहीं कि ये आएगा ये आएगा ये आएगा ये, इसका कुछ नहीं कह सकते। ये पब्लिक का अपना जहन है, अपना दिमाग, अपनी वो है, अपनी समझ, अपना वो बिल्कुल बस अपने बोर्ड का मालिक है वो, जिसको दिल चाहे उसको देगा वो। यहाँ बल्ली मारन का जो काम, जो आपके विधायक हैं, काम कर रहे हैं? हाँ, काम कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। खुश है उनके, खुश है, सारे काम करे जो पब्लिक की जरूरत की चीज है, घरेलू घर की जरूरत की चीज है, वो काम दे रहा है, वो कर रहा है काम। पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक यही चाहती है काम हो, उनको कुछ फैसिलिटी मिले, कुछ मिले उनको, तो वो काम हो रहा है पब्लिक का। आपको लग रहा है सारे काम? हाँ, हो रहा है और बराबर। यहाँ की राजनीति कैसे देख रहे हैं इस बार? राजनीति ये है कि केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली के लिए। और केजरीवाल के ही लोग चाह रहे हैं कि केजरीवाल दोबारा आए, जो अच्छा काम करेगा हम तो उसके साथ हैं, कोई भी आए इसमें तो यहाँ के विधायक हैं इमरान हुसैन, अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी जो बात है। हारून यूसुफ जो कांग्रेस से यहाँ से लड़ रहे हैं, चांस लग रहा है उनका? मुश्किल है। यहाँ के विधायक जो हैं, काम किया है उन्होंने? हाँ, काम करते हैं, सब बढ़िया करते हैं काम में कोई शिकायत नहीं है, काम है, करा है, बढ़िया करा है काम। जो हारून यूसुफ हैं जो कांग्रेस के, इस लग रहा है आम आदमी वाले बेहतर है फिलहाल। केजरीवाल बढ़िया और नरेंद्र मोदी बढ़िया। बढ़िया कौन है? कांग्रेस बढ़िया है। इन दोनों की लड़ाइयों में कांग्रेस ले जाएगी। इस बार चुनाव कैसा देख रहे हैं दिल्ली में? बीजेपी सपोर्ट। यू आर अ बीजेपी सपोर्ट। 20 में बीजेपी, इस बार भी। सर ये बात बताइए, बहुत लोग जैसे चांदनी चौक में बोलते हैं कि कॉपीज बहुत होती हैं, अगर हम यहाँ पर भी देखें बहुत सारे, आपको याद आ जाएगा ये किसी और डिजाइनर का है, वो अभिनव मिश्रा का है, वो सब्यसाची का है। जी। इसको कैसे देखते हैं? मैम कॉपीज का ऐसा है ना, कारीगरी काम कराता है, कुछ उसका कॉपी कुछ मेकआउट करके हम लोग बनाते हैं और फिर कस्टमर को देते हैं। एग्जैक्ट कॉपी तो निकालना बड़ा मुश्किल होता है मैम, एग्जैक्ट तो नहीं निकल सकता, मास्टर कॉपी नहीं निकलेगा, उसका फर्स्ट कॉपी और सेकंड कॉपी निकलता है। तो मतलब आप इसको कैसे देखते हैं, ट्रिब्यूट देखते हैं या कॉपी देखते हैं? मैम कॉपी देखेंगे मैम, ट्रिब्यूट नहीं देखते। आप कॉपी कर रहे हैं? कॉपी होता है मैम, वो कॉपी होता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि, और उसके लिए कस्टमर्स हैं आपके पास, तो इसीलिए कस्टमर मैम, जिस कस्टमर का प्राइस रेंज डिजाइनर का नहीं है 5 लाख का, 4 लाख का, वो तो मैम 50,000 रुपए में कॉपी लेगा मैम, उसको ओरिजिनल कैसे मिल जाएगा? और वो आप वो हम प्रोवाइड करवाते हैं। वो आप प्रोवाइड करा रहे हैं और इसमें आपको कोई झिझक नहीं है कहने में? मैम क्या इसमें झिझक किस बात की है मैम, हम कॉपी कर रहे हैं। बिजनेस कैसा चल रहा है? एज यूजुअल ठीक, ऐसा नहीं कह सकते बहुत हाइप पे है या बहुत स्लो है, ऐसा नहीं है, बस चल रहा है। चल रहा है। एक चीज बताइए, क्या सोच के वोट, और या क्या मुद्दे क्या हैं सबसे बड़े आपके लिए एज अ बिजनेसमैन, एज अ दिल्ली रेजिडेंट? मुद्दे तो मैम साफ सफाई, चांदनी चौक में हुई मैम? नहीं हुई है, गंदगी बहुत रहती है मैम, बहुत ज्यादा रहती है, वो कोई मिनिस्टर या कोई वीआईपी आता है तो फटाफट सफाई हो जाती है, इसके अलावा नहीं होती मैम। तो वो जो पूरा हुआ था कि चांदनी चौक को निखार देंगे, सवार देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे, देखिए ना कितनी रिक्शा चला दी है, रिक्शा बल्क क्वांटिटी में। अगर नो व्हीकल जोन उन्होंने बनाया है सरकार ने, तो उसके अलावा रिक्शा इतनी चला दी है कि पैदल चलना मुश्किल हो जाता है मैम। हम तो बीजेपी को वोट देंगे मैम। आप भी? बिल्कुल, इस बार तो सरकार चेंज चाहते हैं मैम। आप सरकार चेंज बिल्कुल मैम, क्यों चेंज चाहते हैं मैम? एक्चुअली क्या है, जो गवर्नमेंट सेंट्रल में हो जी, अगर वही स्टेट में है और खास तौर पे दिल्ली में रहेगी तो काम कुछ बेहतर हो सकते हैं। 20 में आप लोग किसके साथ थे? 20 में भी हम तो बीजेपी के साथ थे,
आप उन्हीं के मतलब वो आपका फिक्स है? वो हमारा फिक्स है मैम, लेकिन इस बार हम कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तरीके से कहना चाहते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट आए और कुछ चेंज करें यहाँ पर। बदलाव चाहते हैं। ये तो झूठा आदमी है, कुछ नहीं। 2100 रुपए महिलाओं के लिए कह रहा है, 1 रुपए भी नहीं देगा किसी को।